Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. I hope you are doing well and I hope that you are understanding the basics of answer writing as well in a structured and proper format. Uh, Today we are going to take a geography question in the series of our Decoding Toppers Answer Writing copy. Okay, so this copy is again is of topper Animesh Pradhan sir, and we'll see how he has addressed the question and what strategy or what key takeaway we can learn from him. Okay, so moving on to the question now. The question is, discuss why the Bay of Bengal is more prone to cyclones than Arabian Sea. That is our first part of the question. Explain the reasons for the decrease in frequency of tropical cyclones during the southwest monsoon season. That is the second part. Now, the keywords is discuss. अब क्या होता है जनरली व्हेन वी आर राइटिंग अदर सब्जेक्ट्स आंसर we tend to divide it into positive, negative, and way forward. Okay, when the keyword is discussed, but we need to address according to the needs of the subject as well. है ना? तो एक important approach होगा कि आप कैसे उसकी डिमांड को एड्रेस कर रहे हो उसके हिसाब से जो उसमें नीड होती है. अब ज्योग्राफी में तो आप पॉजिटिव नेगेटिव बता नहीं सकते ना, तो यू विल गो ऑन टू द concepts. Okay, the concepts need to be discussed here. That is the main thing. You need to be flexible enough to understand this demand. Okay, so now moving on to the introduction. कैसे? About 75% of India's coastline is prone to cyclones, with 10% of world cyclones concentrated in India, with higher frequency in Bay of Bengal. Okay, so what we can see here is the introduction is factual, contextual, with adequate keywords, right? As well as it's giving some knowledge rather than just repeating the words of the question. अब बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है ज्योग्राफी के इंट्रोडक्शंस लिखने की, तो आई सजेस्ट कि या तो आप ऐसे फैक्ट्स यूज कर लो या फिर जस्ट एक्सप्लेन द फिनोमेना दैट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन. ओके, it will help you under like writing a good introduction. Now moving on to the content, that is the first part of the question. Okay, तो हमने देखा कि जो हेडिंग दी है इन्होंने एज इट इज क्वेश्चन से उठाई गई है. ओके, ये क्या हेल्प करता है टू लाइक मेक द एग्जामिनर अंडरस्टैंड कि हमने क्वेश्चन की डिमांड को एज इट इज फुलफिल किया है. ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइक मेक हिम अंडरस्टैंड दिस. देन पॉइंट्स क्या है? अब डिस्कस है तो डिस्कस में मैं ओरिजिन से लेके एंड तक सब कुछ बताना पड़ेगा. व्हाट आर द की फैक्टर्स? तो सेम वे, most of the cyclones origin in the North Pacific Atlantic and travels westward in Bay of Bengal, originate from Bay of Bengal. Hence, Arabian Sea gets less remnants. अब क्या होता है, एक चीज बहुत अच्छी बताती हूँ. जैसे बहुत सारे लोग अपने आंसर्स में ना एब्रीविएशंस यूज करते हैं, राइट? मैं हमेशा बोलती हूँ एब्रीविएशन शुड नॉट बी यूज डायरेक्टली. अगर आपको यूज करना है ना तो टेक दिस फॉर्म. है ना? पहले इन्होंने क्या किया, ही हैव शोन कि बे ऑफ बंगाल को मैंने बीओबी बोला है एंड देन ही यूज बीओबी. ओके, सो दिस इज अ लाइक गुड वे टू यूज एब्रीविएशंस. प्लीज नोट दैट. ओके, second point is rivers. Four rivers Ganga, Brahmaputra, Godavari flow to the BOB that leads to intermixing of hot and cold water. Okay, intermixing होंगे तो currents होंगे. Currents होंगे तो like activity होगी, right? और temperature बढ़ेगा तो भी cyclones होंगे. ये देखो उन्होंने ये next point में address किया है. BOB has higher temperature than Arabian Sea, reaching 27 degrees Celsius, ideal for cyclone formation. है ना? Fourth point is peninsular shape of India concentrates cyclone in BOB and westward travel flows to Indian Ocean. ये जो है, यहाँ BOB है, ये अरेबियन सी है, ये इंडियन ओशियन है. तो वी नो द कंसेप्ट साइक्लोन फॉर्मेशन का. तो ऐसा एक डायग्राम बना दिया. अब आई सजेस्ट कि इन ज्योग्राफी ऑलवेज यूज डायग्राम ऑन फर्स्ट पेज. ओके, इट इज वेरी नीडेड क्योंकि ज्योग्राफी के कंसेप्ट्स आर नथिंग विदाउट डायग्राम. It is very important to talk in terms of diagram and concepts in geography. I hope you understand that.
and please try to incorporate diagram wherever you can until and unless it is very irrelevant to do so. Okay, now we have seen कि 4 points इन्होंने लिखे हैं and then he have moved to the second heading. तो सेकंड हेडिंग जो है वो डायरेक्टली फिर से क्वेश्चन से ली गई है। एक्सप्लेन करना है रीजन कि फ्रीक्वेंसी क्यों डिक्रीज हो जाती है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मानसून। इंडिया का साउथ वेस्ट मानसून जो है उसके टाइम पे व्हाई देयर आर लेस साइक्लोन्स ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देन अर्लियर। तो इन्होंने हेडिंग फिर से एज इट इज राइट फ्रॉम द क्वेश्चन। ओके, अगेन phenomena समझाया है position of ITCZ due to ITCZ land mass during southwest monsoon low pressure not developed in sea। ये क्या है बेसिकली एक्सप्लेन ना करके बिकॉज ऑफ स्पेस कॉन्स्ट्रेंट जस्ट बता दिया है मेन जो कीवर्ड्स है ना वो लिख दिए हैं। ओके, और एक डायग्राम इनकॉर्पोरेट कर दिया बिकॉज एनी वे इट इज नेसेसरी टू ड्रॉ अ डायग्राम। ठीक है, देन high wind shear during southwest monsoon prevent the formation of cyclones। okay, temperature reduced temperature होता है ड्यू टू precipitation unaided for cyclone। मॉइस्चर ज्यादा होता है दिस ऑल्सो कैन बी वन पॉइंट। लो प्रेशर होता है ना। सो दीज आर द पॉइंट्स दैट ही कुड ऐड। जैसे यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हैं तो आई सजेस्ट कि एटलीस्ट 4 to 5 पॉइंट्स दो ही अंडर ईच हेडिंग टू गेन लाइक प्रॉपर मार्क्स। ओके, अब क्या हमने देखा इस आंसर में कि जो स्पेस है ना वो फर्स्ट पार्ट के लिए तो ठीक है इनफ है और बहुत फैला फैला के भी लिखा है बट इन सेकंड पार्ट स्पेस की इतनी ज्यादा कमी है। इन्होंने जो एक्सप्लेनेशन है वो वर्ड्स में कर दी मतलब ही इज नॉट एक्सप्लेनिंग प्रॉपरली। फिर ये पॉइंट्स कम कर दिए। तो ये सब क्यों होता है? दिस हैपेंस बिकॉज प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड नहीं किया जाता आंसर को। हम ना इतना टाइम होता है टू बी ऑनेस्ट क्वेश्चन आया देन वी स्टार्ट राइटिंग वी डोंट थिंक जनरली। तो ये कैसे डेवलप होगा? ये प्रैक्टिस से डेवलप होगा, है ना। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें कितने पॉइंट्स अंडर ईच हेडिंग लिखने हैं। पार्ट 2 करने हैं मेन कंसेप्ट के या फिर 3 करने हैं देन यू नीड टू डू दिस। ऐसा मत करो कि फर्स्ट पेज पे बहुत सारा स्पेस छोड़ दो एंड सेकंड स्पेस पे ना सेकंड पेज पे स्पेस ही ना बचे, है ना। तो we need to utilize the space very efficiently to address all parts properly। okay, अब कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन क्या लिखा है? विद द क्लाइमेट चेंज एग्रेवेटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन इंडिया मस्ट टेक स्टेप्स इन प्रिवेंटिव अप्रोचेस। बेसिकली पॉजिटिव टोन में कंक्लूजन लिख दिया है, कोई ज्यादा वो नहीं घुमा फिरा के डायरेक्टली हिट द डिमांड ऑफ द कंक्लूजन। ओके, अब इसको थोड़ा सा अगर हमें और अच्छे से लिखना होता तो वी कुड हैव रिटन ऐसे intensity of disaster in Bay of Bengal, causing an emergency call for India to deal with such phenomenon like in a better way। एग्जाम्पल भी दे सकते थे कि इस साइक्लोन में इतने स्टेट्स प्रभावित हुए थे या ये हुआ था। सो दिस कुड ऑल्सो फॉर्म अ गुड कंक्लूजन। अब क्या होता है, जैसे इन्होंने प्रिवेंटिव अप्रोच देख के एक हल्का सा हिंट दे दिया किस चीज का? डिजास्टर मैनेजमेंट का। डिजास्टर मैनेजमेंट इज इन GS3। ये क्या है? GS1 है। जब आप ऐसे करते हो ना तो यू टेंड टू शो द एग्जामिनर दैट यू आर इंटीग्रेटिव इन अप्रोच। ओके, आपको मल्टीपल सब्जेक्ट्स की जो इंटरलिंकेजेस हैं वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर है एंड यू कैन यूज इट लाइक वेरी एफिशिएंटली। So this get an upper age. Okay. Always remember that. Try to integrate as many things as you can. But उसके चक्कर में irrelevant नहीं होना है. There's a demand between integration and irrelevancy, right? You need to be like in the middle path always. Okay. So अब यहाँ एक चीज है कि आपको 2 पेजेस में अपना आंसर किस तरीके से एड्रेस करना है ना। तो ये जो मैंने 2 पेजेस बनाए हैं, है ना, ये क्वेश्चन है। ठीक है, 2 लाइन का आपका क्वेश्चन, सपोज ये आपकी स्पेस इतनी ले गया। इंट्रोडक्शन लिखा हमने 3 लाइन का। ओके, 10 मार्कर में इससे ज्यादा आगे मत बढ़ना, 3 लाइन में खत्म कर देना उसको मोस्ट सफिशिएंटली। फर्स्ट हेडिंग दी, राइट। फर्स्ट हेडिंग के बाद उसके पॉइंटर्स दिए दिस। ओके, अब सबको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, एक दो लाइन में सबको खत्म करना है अलोंग विथ यहाँ आपका क्या आ जाएगा? डायग्राम। ओके, देन अगेन इन सेकंड पेज फोर्थ पॉइंट यहाँ पे लिखा आपने, सेकंड हेडिंग डाली, अगेन 4 to 5 points you have written।
वही 2-3 लाइंस में मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं जाना है। एंड देन क्या, कंक्लूजन। ओके। अब ये जो चीज है ये क्या करेगा, आपका प्रेजेंटेशन इंप्रूव करेगा। प्रेजेंटेशन की नीड क्यों है? It is always said that first impression is the last impression, right? And it is not false in any way. Examiner सबसे पहले आपकी कॉपी पूरी पलट के देखता है, how you have written, whether your handwriting is legible or not, whether you have drawn diagram or flow chart or not, है ना? आंसर बहुत monotonous नहीं होना चाहिए. It should be according to the needs of the question as well as it should be dynamic. Okay, this will make a proper answer. So I hope you have learned the basics of like proper answer writing from this answer as well. You have learned something. Please mention in the comment section what you have liked or what you have not, and what your demands and needs from us so that we can improve it as well. And also, please subscribe and like our videos. Stay connected with us. You can also connect with us on Telegram channel that is given in the description box below. It will help you to get notifications as well as different initiatives that we are launching for answer writing. Okay, stay connected, keep learning. All the best. Thank you.